Hello, in this video we are going to see what is inelastic collision. तो हमें पता है कोलिजन के तीन टाइप के कोलिजन होते हैं. फर्स्ट इज इलास्टिक, सेकंड इज इनइलास्टिक एंड थर्ड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. सो और तीनों कोलिजन में लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है. तो अभी हम देखेंगे इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो वी नो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. What is perfectly inelastic collision? In which two objects collide and उनकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कॉमन होती है. सो मतलब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद वो सेम स्पीड से जाते हैं. सो वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2. ये हो गया इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2. और हमें पता है कि v1 और v2 सेम है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद एक दूसरे से अटैच होके सेम स्पीड से जाते हैं. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, दो क्ले बॉल्स अगर हमने कोलाइड किए तो वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे. तो वी कैन राइट फाइनल मोमेंटम इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. v इज कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. सो हमें फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया m1 v1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. So this is the formula for final velocity in perfectly inelastic collision. Now हमें पता है changing kinetic energy कैसे लिख सकते हैं. This is changing kinetic energy but we are writing in terms of loss in kinetic energy. कोलिजन में हमेशा kinetic energy loss होती है, उसमें एडिशन नहीं होती है. So loss in kinetic energy equal to इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो हमेशा कम रहेगी. सो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. So this whole final kinetic energy will subtract from initial kinetic energy. So this is changing kinetic energy. और अगर हम ये फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन दो फाइनल वेलोसिटीज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम पूरा सॉल्व करेंगे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो हमें मिलेगा चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. So this is the formula we get for changing kinetic energy, that is loss in kinetic energy. Okay. और perfectly inelastic collision के लिए E कितना होता है, 0 होता है. E is coefficient of restitution. Now inelastic collision. What is inelastic collision? जो elastic भी नहीं है और वो perfectly inelastic भी नहीं है. That is some kinetic energy is lost. In perfectly inelastic collision, changing kinetic energy, that is loss of kinetic energy is maximum because दोनों मास जो है वो तो एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं. So in for inelastic collision, दो मास after colliding they separate and move with different velocities. So for inelastic collision there is some loss of kinetic energy but it is not maximum because after colliding there is some reflection. Okay. So for inelastic collision, we will first see coefficient of restitution. Coefficient of restitution कितना होता है in inelastic collision? It is greater than 0 but less than 1. So E is between 0 and 1. And what is E? E is velocity of separation, that is v1 minus v2 upon u2 minus v1. Minus of velocity of separation upon velocity of approach. This is inelastic collision. Now we can write v1 equal to, from this we can write v1 equal to E into u2 minus u1 plus v2. So we can write v1 equal to this one. Now in inelastic collision momentum conservation also holds.
So we can write m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, and we can substitute v1 in that. Then we can find out formula for v1. So we get v1 equal to m1 minus em2 into u1 upon m1 plus m2 plus 1 plus e into m2 upon m1 plus m2 into u2. So this is the formula we get for final velocity of the first object. This is very important formula. If we substitute E equal to 0, अगर ये perfectly inelastic collision है तो we will substitute E equal to 0 here. So what do we get? V equal to, if we substitute E equal to 0, then this term gets 0, m1 upon m1 plus m2 into u1 plus m2 upon m1 plus m2. So if we add those two, then we get m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. So this is the formula for perfectly inelastic collision. So we can derive velocity for perfectly inelastic collision by substituting E equal to 0 here. Now what will be formula for V2? Basically 1 and 2 are the random subscripts we have assigned for objects. हमें ये नहीं पता कि यही पहला ऑब्जेक्ट है और यही दूसरा ऑब्जेक्ट है. हम इसको भी पहला ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं और इसका दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. सो फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालने के लिए हम सिंपली सबस्क्रिप्ट चेंज कर देंगे. सो वी गेट m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2. u1 का u2 हो जाएगा, m2 का m1 हो जाएगा, m1 का m2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस ई सेम रहेगा, m2 का m1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, u2 का हो जाएगा u1. So this is the universal formula for final velocities after collision. अगर हम इसमें E इक्वल टू 1 डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा इलास्टिक कोलिजन के लिए फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के लिए E हो जाता है 1. सो अगर हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें हमने इलास्टिक कोलिजन के लिए फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, वो मिल जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1. You can verify this by putting E equal to 1. So this is the universal formula. You have to remember this because from this you can derive final velocities for both perfectly inelastic and elastic collision. Now what is change in kinetic energy? Change in kinetic energy for inelastic collision is half of m1 m2 upon m1 plus m2 into u1 minus u2 का स्क्वायर into 1 minus e square. So this is the formula for loss in kinetic energy for inelastic collision. अगर हम v1 और v2 के वैल्यू इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलता है चेंज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस वन. इसमें भी अगर हम E इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, E इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दिस विल बी 1 एंड वी गेट हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. So this is what we get from this formula if we substitute E equal to 0. और E equal to 1 substitute कर देंगे तो this will be 1 minus 1, that is 0. So this whole term will be 0 and E equal to 0 is for E equal to 1 is for elastic collision. तो हमें मिलता है elastic collision के लिए change in kinetic energy is 0. So these three formulas are very important. You can derive for other two collisions also. Now we get most common term m1 m2 upon m1 plus m2. We write this term as mu equal to m1 m2 upon m1
प्लस m2। अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड हो रहे हैं तो पहला पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे कोई फोर्स लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे कोई फोर्स लगाएगा, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस विल बी इक्वल एंड अपोजिट। सो पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे पे जो फोर्स लगाया उसके वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट का कुछ मोमेंटम चेंज हुआ। सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट ने पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उसका कुछ मोमेंटम चेंज हुआ। तो हम एक इम्पल्स करके टर्म डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज डिनोटेड बाय जे। दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। So change in momentum for first object will be same as change in momentum for second object. दोनों ऑब्जेक्ट का जो इंडिविजुअल मोमेंटम होगा वो सेम होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड विल बी सेम। पहले का मोमेंटम जितना कम होगा उतना ही दूसरे का बढ़ेगा, क्योंकि टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। सो वी कैन राइट जे इक्वल टू दैट इज इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इक्वल टू change in momentum of second object. Now we have defined mu equal to m1 m2 upon m1 plus m2. इसे कहते हैं reduced mass. This is reduced mass. ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला लिखने में आसानी हो जाती है। So this impulse term is equal to mu into 1 plus e into u2 minus u1. This is magnitude of u2 minus u1. क्योंकि जो हम चेंज इन मोमेंटम ले रहे हैं उसका हम बस मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। जितना पहले का मोमेंटम कम होगा उतना दूसरे का मोमेंटम बढ़ेगा। सो दिस इज इम्पल्स। इम्पल्स इज बेसिकली अगर कोई बॉल हमारे पास कोई बॉल हमारे तरफ थ्रो किया और हमने उसे बैट से मारा जोर से, सो बॉल और बैट का जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल कम सेकंड्स के लिए, दैट इज अराउंड 10 मिली सेकेंड्स और समवॉट लाइक दैट, बहुत कम टाइम के लिए। लेकिन उसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बॉल पहले इस डायरेक्शन में था फिर वापस दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से। सो चेंज इन मोमेंटम इज वेरी लार्ज फॉर वेरी स्मॉल इम्पैक्ट। सो this what we call impact, we define impulse as force and force multiplied by time for which those two bodies were in contact। मतलब अगर 10 मिली सेकेंड के लिए बॉल और बैट कांटेक्ट में होंगे और हमने बैट से F फोर्स दिया था तो इम्पल्स हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय 10 मिली सेकेंड। सो इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। सो दिस गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा, मोमेंटम। फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एंड व्हाट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम? इम्पल्स। सो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू म्यू इनटू 1 प्लस ई multiplied by magnitude of relative velocity. And what is mu? Mu is reduced mass, m1 m2 upon m1 plus m2. So J is basically mu into 1 plus e into magnitude of relative velocity. So this is how we define impulse for collision. You can write m1 and m2 here. So what have we learned in this? पहले हमने देखा कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि E इक्वल टू 0 होता है। इस फॉर्मूले में हम E इक्वल टू 0 डाल देंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी दोनों ऑब्जेक्ट की, एंड दोनों ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी सेम होती है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ for inelastic collision we have derived formula for
final velocity of first object, second object, we have also seen what is loss in kinetic energy in inelastic collision. So this is loss in kinetic energy for inelastic collision. Meanwhile, we have defined reduced mass concept. So reduced mass is equal to m1 m2 upon m1 plus m2. We now later we saw what is impulse. Impulse is basically change in momentum. Now change in momentum of individual objects. पहले ऑब्जेक्ट का जितना मोमेंटम कम होगा उतना ही दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बढ़ेगा, या फिर वाइस वर्सा. अगर दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम हो रहा है तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बढ़ेगा. सो जे इज बेसिकली reduced mass multiplied by 1 plus coefficient of restitution multiplied by relative velocity का magnitude. So for impulse we only see magnitude of change in momentum. I hope you understand. This is very important formula. Learn them. Thank you.